ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕੁਲੀਬਰੀਅਮ ਆਫ ਆ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ। ਇਕੁਲੀਬਰੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਕੁਲੀਬਰੀਅਮ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ, ਬੋਡੀ ਰੋਟੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਟੋਰਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ, ਟੋਰਕ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੁਲੀਬਰੀਅਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਇਕੁਲੀਬਰੀਅਮ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਲੀਬਰੀਅਮ 'ਚ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ? A body is said to be in mechanical equilibrium if both its linear momentum and angular momentum constant ਹੋਵੇ ਨਾ, do not change with time। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਡੂ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਕੁਲੀਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਆ? ਫੋਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ state of motion, the equation given by ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਫ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ। ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡੀ ਪੀ ਓਵਰ ਡੀ ਟੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੂਰੀ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਮ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ I1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਓਕੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਟੋ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ ਇਕਲਸ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਕਲਸ ਟੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਜੂਗਾ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਡੀ ਐਲ ਓਵਰ ਡੀ ਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀਆਂ, ਓਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕੁਲੀਬਰੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਕੁਲੀਬਰੀਅਮ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਕੁਲੀਬਰੀਅਮ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਲੀਬਰੀਅਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ
जे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम चाहिए उहदे लई कंडीशन की चाहिए आ ट्रांसलेशन स्टेट वास्ते जिहड़ी एफ एक्सटर्नल हैगी आ ये चीज़ होंदी है तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम चाहिए तो इहदे च चेंज नहीं होना चाहिए मतलब कि जिहड़ी ओहदी एफ एक्सटर्नल हैगी आ वो 0 के बराबर होनी चाहिए आ यही चीज़ है। तो एफ एक्सटर्नल की सी अपने पास सारियां एफ इज़ द सम तेनों आप की लिख सकते हैं F1 प्लस F2 जिन्नियां भी फोर्सिस उहदे लग रही सी सारिया फोर्सिस का सम लिख लिया इक्वल्स टू 0। हुण जिहड़ी आपां कोई भी एफ आई लिखते हैगे आ है ना कोई भी एफ आई लिखते हैं जे F1 लिखते हैं लैट्स से कोई एफ आई लिखते हैं तो उन्होंने वैक्टर फॉर्म च किवें लिखा जाऊगा एफ आई एक्स कंपोनेंट उहदा एक्स कंपोनेंट नाल आई कैप इतने एक्स कंपोनेंट पैर च पा पैर च लिखते होंगे आप जिमें कोई भी आप जिमें आर का लिखते होंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जैड के कैप लिखते हैं ना इस तरह जे एफ अपने पास होवे तो उहदा आप की लिखांगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जैड के कैप उसी तरह जो एफ आई है उनका की लिखा जाएगा एफ आई एक्स आई कैप प्लस एफ आई वाई जे कैप प्लस एफ आई जैड के कैप ठीक है। तो मेरे को इतने की आ गया उस तरह ही एफ आई वाई जे कैप प्लस एफ आई वाई आई जैड के कैप ये चीज़ आ गई। हुण ये जिहड़े एफ जिहड़े हैगे ने कंपोनेंट वेयर ये सारे लिखना वा एफ आई एक्स एफ आई वाई एंड एफ वाई आई जेड आर component of force on ith particle of rigid body along x, y and z रिस्पैक्टिवली हमें पता एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग आ वाई दे आ जैड दे है ना ये चीज़ हो गया। तो हुण ये तो 0 के बराबर सी मतलब कि आ सारे कंपोनेंट भी 0 के बराबर हो जाएंगे इट मीनस इट इंप्लाइज दैट भी जे अपने को एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल 0 के बराबर सी तो एफ आई एक्स आई कैप प्लस एफ आई वाई जे कैप प्लस एफ आई जैड के कैप इनका जो समीशन है वो भी 0 के बराबर हो जाऊगा। तो इन्हें तो की आ जाऊगा सारे का अलग अलग 0 के बराबर आ जाऊ जो आई एफ आई एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एफ आई जे इक्वल्स टू 0 एंड एफ आई एक्स इतने वाई आना सी एफ आई जेड इक्वल्स टू 0। ये साड़ी कंडीशन कादी आ गई कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्योंकि आपां सारे इक्विलिब्रियम की गल करनी है। तो इहदे विच आपां की पढ़िया भी दोने लीनियर मोमेंटम ते एंगुलर मोमेंटम दोने चेंज नहीं होने चाहिए मतलब कि दोनों का जिहड़ा दोने स्टेट होनी चाहिए ने ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए ठीक है। तो अपने पास ये चीज़ होगी तो हम दूसरे दे विच की आ सेम सिमिलरली फॉर कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम वो की होगी इहदे विच की हो जाएगा टॉ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इहदे टॉ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ठीक है। तो इनके भी कंपोनेंट बनणगे इनके भी कंपोनेंट बन गए कि बन गए T1 टी आई एक्स आई कैप प्लस टी आई वाई जे कैप प्लस टी आई जेड के कैप है ना ये चीज़ बनूगी नाल अपने समीशन ला दिता आप तो इक्वल्स टू 0 तो उवें आ जाऊगा ये। तो इहदे विच आपां फिर लिखना भी टी आई एक्स की हैगा वा टी आई वाई की हैगा ते टी आई जेड की हैगा
द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क along x y and z एक्सिस। तो मेरे को ये चीज़ आ गई, इनके तो मेरे अलग अलग सारे जीरो के बराबर आ जाएंगे। तो ये अपने को कंडीशन हैगी। एक तो आ कंडीशन आ गई ये वाली, इनू तीजी इक्वेशन मान लो, इनू की मान लो चौथी इक्वेशन। तो इन्हें देखो 6 कंडीशन बन गई ना, 1 2 3 4 5 6। ये 6 जिहड़ियां कंडीशन हैगियां वा सैटिस्फाई होनी चाहिए, तां ही असीं कह सकते हैं भी जिहड़ी बॉडी हैगी आ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम दे विच हैगी आ। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विच होण वास्ते ये चीज़ का तुसीं ध्यान रखना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम च होण वास्ते बॉडी अपने पास ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम विच भी होनी चाहिए है, एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम विच भी होनी चाहिए है। कुछ इदां दी स्टेट भी एग्जिस्ट करदियां ने, कुछ इदां दी स्टेट भी हैगियां ने जिंदे विच अपने पास जिंदे विच अपने पास बॉडी एक ही इक्विलिब्रियम विच हुंदी आ, जां तां रोटेशनल च होगी, ट्रांसलेशन च नहीं होगी, जां वो की होगी ट्रांसलेशन च होगी, रोटेशनल च नहीं होगी, है ना। तो उस वास्ते कंडीशन की हैगियां ने, उस इक्विलिब्रियम नूं की बोलदे ने, उस इक्विलिब्रियम नूं बोलदे ने पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। जां तां बॉडी पार्शियल इक्विलिब्रियम च की है भी, जां तां बॉडी ट्रांसलेशन मोशन च होगी, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम च होगी, ते जां रोटेशनल च होगी। ते जां अपने पास ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम च नहीं हैगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम च हैगी है। ठीक है, ट्रांसलेशन च हैगी है, रोटेशनल च है नहीं, जे ट्रांसलेशन च है नहीं तो रोटेशनल च होगी, उस वाले नूं की बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हुण जिवें पहला केस कर लिया भी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम च हैगी आ ते सॉरी जे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम च हैगी आ ते रोटेशनल इक्विलिब्रियम च है नहीं गी, तो उहदे लई की हैगा वा अपने पास कंडीशन की होगी, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम च होने वास्ते कंडीशन की चाहिए सी, FI 0 के इक्वल चाहिए सी, है ना। हुण ये केस विच किवें होगा जी, मान लो एक रॉड है, बैलेंस की हुई रॉड है, इहदे एक इधरले पासे फोर्स लग रही है, एक इधरले पासे फोर्स लग रही है, इक्वल फोर्स लग रही पर ऑपोजिट डायरैक्शन च, तो दोनों बैलेंस होंगे एक दूजे नाल, ते नैट फोर्स की होगी इन्हां दी 0 होगी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ये नीचे लग रही है, ऊपर लग रही है, डायरैक्शन ऑपोजिट है, तो कैंसल आउट हो गई, तो रिजल्टेंट फोर्स की होगी अपनी 0 होगी। तो इस करके जिहड़ी रॉड हैगी आ वो की आ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम च हैगी ने। रोटेशनल फॉर रोटेशनल दे विच की हुंदा वा आपां नूं टॉ इक्वल्स टू 0 चाहिए, लेकिन आप पहला केस की कर रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम च नहीं होना चाहिए, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम च नहीं है। हुण देखो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम च नहीं है, रोटेट करूगी ना ये वाला टॉर्क जिहड़ा इत्थे टॉर्क लग रहा वो इनू इधर नूं घुमाऊगा, जिहड़ा इधर टॉर्क लग रहा वो इनू इधर नूं घुमाऊगा, जिहड़ा इत्थे टॉर्क लग रहा वा वो इनू इधर नूं घुमाऊगा, जिहड़ा इधर लग रहा वा वो इनू इधर नूं घुमाऊगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम च तो है ही नहीं, रोटेट तो कर रही है, ठीक है। तो इसलिए एक नॉट इक्वल्स टू एक है पार्शियल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है पहली, मतलब कि पहली स्टेट। दूजी स्टेट दे विच जे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम च है नहीं, फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ठीक है, अपने पास इहदे विच की सीगा FI इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन आप क्या ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम च है नहीं गी, ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम च है नहीं,
है ना। तो मेरे को की आ गया ये नॉट इक्वल्स टू 0, फोर्स नॉट इक्वल्स टू 0। केस किमें देखो अपने पास फोर्सिस दोनों एक ही डायरैक्शन में लग रही हैं, फोर्सिस दोवें एक ही डायरैक्शन में लग रही हैं, तो एक ही डायरैक्शन में लग रही हैं तो फोर्स तो 2F हो गई, फोर्स तो 2F हो गई, तो 0 के इक्वल हो रही नहीं, तो मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं रहा, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इधर होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इधर होगा। यस, जो टॉर्क हैगा वा वो 0 होगा ਇਹਦਾ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि रोटेट नहीं ना करूँगी, ਇਹਦਾ ਟਾਰਕ इधर ਨੂੰ है, ਇਹਦਾ ਟਾਰਕ इधर ਨੂੰ है, तो ਉਹ ਕੀ बैलेंस हो जाऊगा, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ अपने पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम च हो जाऊगी। ठीक है, ये उदा समझ सकते ना, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਵੇਟ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਵੇਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀਸਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਸਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੀ, ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਵੇਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵਾਲਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਫ ਅ ਰਿਜਿਡ ਬॉडी। ठीक है, ख़त्म हो गया ਇਹਦਾ टॉपिक, तो फिर आप नैक्सट करांगे अगे।